Khwaja Abdul Sawai Shirazi, he came to India. Humayun, he belonged to Shiraz in a painting. His expertise in painting earned him title Shiri Kalam. He gave lesson in Humayun and Akbar. He was the honest Akbar atelier and his favorite also by appreciate turned out to be experts too. Daswant. Daswant was the best Hindu painter and initially employed at Akbar's atelier. He learned painting from Abdul Samad. He painted beautifully in Ramzan. He also painted nondescript figures. He painted the mythological scenes based on the daily life. The Indian element in Mughal style is for contribution of Daswant. Baswan. He was a leading Hindu painter in the court of Akbar. He painted around 100 paintings. Abdul Fazl has praised him in his memoirs. Basavan paintings are very close to reality. He was the illustrated manuscript Darbaram and Akbaram. ख्वाजा शब्द सई शिराजी ने इल्दिस हुमायूं आए। उन्होंने शिराज में चित्रकला में महारत हासिल की और श्री कलाम में उन्होंने हुमायूं और अकबर के नाम दिए। वह अकबर का अटल था और उसके पसंदीदा अल पेरेंट्स के 3 विशेषज्ञ थे। दसवंत दसवंत वह सर्वश्रेष्ठ हिंदू चित्रकार और आरंभिक कर्मचारी अकबर के अतुल्य थे। उन्होंने अब्दुल समद से पेंटिंग ली। उन्होंने राजनामा में खूबसूरती से पाला किया। उन्होंने यह भी कहा कि आंकड़े हों। उन्होंने दैनिक दृश्यों के आधार पर पौराणिक दृश्य को चित्रित किया। मुगल शैली में भारतीय क्लीमेंट प्लेटफॉर्म 3 वारिस और दुमाता के तुराक फाल्कन योगदान है। बेसवन वह अकबर के दरबार का एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। उन्होंने हुंड चित्रों के आसपास चित्रकारी की। अबुल फजल ने अपने संस्मरणों में उनकी प्रशंसा की है और बसवान की पेंटिंग वास्तविकता के बहुत करीब है। वह मधुमक्खी थी। पृष्ठभूमि तैयार करने में विशेषज्ञ चेहरे की झुर्रियों को चित्रित करना, रंग तैयार करना। उन्होंने तो सचित्र पंडुलिपि दरबारनम और अखानम पर काम किया हुआ है। अब हम बात करेंगे मुगल आर्ट अंडर जहांगीर. Jahangir took over the reins of Mughal Empire in 1605. He was a scholar, kind-hearted, art-loving administrator. Under him, the art continued with tradition of Mughal style promoted by Akbar, but later one with apple, charso, light and shades. This style faced a transition with incorporation of few elements. Persian painter Aqua Reza was the head of Jahangir. A clear Aqua Reza style was replaced with the Indian style. His son Abdul Hassan was the favorite of Jahangir. The birds painted by Ustad Mansoor were attracted and his turkey cock and falcon are world famous. Plate 3. Various expressions and moods were painted during Jahangir time. His face was usually painted with a hollow behind. Jahangir also sent his painter abroad for learning and study. Besides the Bichon-Stoke training Persia, he also painted for the Shah of Persia for many years, where he painted the world-famous Sheikh Pul Sufi son. His marriage to Noor Jahan evinced a deeper interest in painting. Manohar Ustad, Mansoor, Aqua Reza, Hassan, Bisandas, Govardhan, etc. were some painters of this era. For his love of nature, Jahangir ordered the erection of open tomb for self. The period is known as the finest of मुगल आर्ट। जहाँ तक हम मुगल अंडर जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर ने 1605 में मुगल साम्राज्य की बाड़गौर संभाली। वह एक ऐसा विद्वान था, दयालु था, कला प्रेमी शासक थे। उनके तहत कला अकबर द्वारा प्रवर्तित मुगल शैली की परंपरा के साथ जारी रही, लेकिन बाद में पर्याप्त चिरोकार रोशनी और रंगों के साथ इस शैली को नए तत्वों के समावेश के साथ एक संक्रमण का सामना करना पड़ा। फारसी चित्रकार अका रेजा जहांगीर के एटलियर का प्रमुख था। अका रेजा की शैली भारतीय शैली की चित्रकला से परिपूर्ण थी। उनके पुत्र अबुल हसन जहांगीर को पसंद थे। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित पक्षी बहुत आकर्षक और उनकी तुर्की मुर्गी और फाल्कन विश्व प्रसिद्ध। प्लेट 3 जहांगीर के समय में विभिन्न भाव और मनोदशाओं को चित्रित किया गया था। उसका चेहरा आमतौर पर एक प्रभाव मंडल के साथ भरा था।
जहांगीर ने सीखने और अध्ययन के लिए अपने चित्रकारों को विदेश भी भेजा। बिशन दास ने प्रशिक्षण में फारस लिया। उन्होंने कई वर्षों तक फारस के शाह के लिए भी चित्रकारी की, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध शेख फूल सूफी संत का चित्रण किया। नूरजहां के साथ उन्हें विवाह से चित्रकार में गहरी रुचि पैदा हुई। मनोहर उत्साह मानसक आगाज राजा हसन बिशन दास गोवर्धन ईटे थे। इस युग के चित्रकार थे। प्रकृति ने अपने प्यार के लिए जहां के स्वयं के लिए एक खुली कब्र के निर्माण का आदेश दिया। इस अवधि को मुगल कला के बेहतरीन रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे द सब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर एरा। नेचर, ह्यूमन एक्सप्रेशन were integrated in painting during Jahangir's time. On the other hand, the importance of manuscript diminished. Painting on social, religious, and political themes have been painted with dexterity. The court themes have been painted with sophistication and luxury. Scenes, recreation, hunting, seraglio with celebration have been depicted realistically in order for painting to aesthetically pleasing. All elements of composition have been fused. The European work influenced the painter of Jahangir's court. Delicacy and finish attained great sensitivity along with the portrayal of splendors of royal life. Historical events, Christianity, European and other subjects were favorable themes of painting. जहांगीर के समय में चित्रों में प्रकृति और मानवीय भावों का एकीकृत किया गया था। दूसरे स्तर पर पांडुलिपियों का महत्व कम हो गया था। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर पेंटिंग को निपुणता के साथ चित्रित किया गया था। कोर्ट के विषय के परिष्कार और विलासिता के साथ चित्रित किया गया। सीनो, रोटेशन, शिकार, सैरगिलियो और उत्सव वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। चित्रकला के लिए सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से रचना के सभी तत्वों का उपयोग किया गया। यूरोपीय कामों ने जहांगीर के दरबार के नौसैनिकों को प्रभावित किया। नाजुकता और फिनिश ने बड़ी संवेदनशीलता हासिल की। शाही जीवन के अलंकारों के चित्रण के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाएं, ईसाई धर्म, यूरोपीय और अन्य विषय चित्र के लिए फेवरेबल थीमें थीं।